सब लोगों ने यही बोला दैट वी हैड पुट सो मच ऑफ एफर्ट्स इन दिस एग्जाम, सारी प्रिपरेशन सही ऑन स्पॉट थी, फिर भी नहीं निकला। बट क्या दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी और इज इट अ बिगिनिंग फॉर समथिंग मोर अहेड? लेट मी से 3 मंथ सबसे क्रूशियल टाइम है नीट पीजी का, क्योंकि अगर आपने इतने दिन जो भी पढ़ाई करी है, व्हाट यू शुड हैव एज अ रोड मैप फॉर क्वालिफाइंग इन योर नीट पीजी एंड कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। हेलो डियर मेडिकल स्टूडेंट्स, नाउ आई विल स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेगमेंट विद वन लाइन. The best part of your life lies on the other side of your fear. And comeback in medicine is for those who have the strongest desires. I am Dr. Sanchit Bajpai, ENT faculty at PW Merit. And we all know that INI CET exam is done and dusted. INI CET exam के बाद I got a lot of messages personally. And सब लोगों ने यही बोला that we had put so much of efforts in this exam. We gave everything possible. सारी प्रिपरेशन सही ऑन स्पॉट थी, फिर भी नहीं निकला। बट क्या दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी और इज इट अ बिगिनिंग फॉर समथिंग मोर अहेड? नाउ इफ यू सी INI CET एंड नीट पीजी पैरेलल में कुछ ही महीनों के बाद इन डिफरेंस रहते हैं। लेट मी से 3 मंथ सबसे क्रूशियल टाइम है नीट पीजी का, क्योंकि अगर आपने इतने दिन जो भी पढ़ाई करी है, दैट विल गो फॉर अ वेस्ट इफ यू डोंट रिवाइज वेल, इफ यू डोंट रिकैप वेल एंड डोंट अपडेट वेल ड्यूरिंग दीज लास्ट 3 मंथ्स ऑफ टाइम. So what we should do in these last 3 months, what you should have as a roadmap for qualifying in your NEET PG and come out with flying colors. So drop down INI CET first of all and let's give a promise to each other. और वो एक promise from an educator to a student हमारे बीच में रहेगी. That's a very personal promise, and that is in the next 3 months you're not going to look back, and at the same time you're going to give everything to this exam. Everything का मतलब है I don't want you to calculate मैंने कितना घंटा पढ़ाई करी. Honestly, whatever ghanta you need, you read. But you need to be honest to yourself that yes, you have done that part over that day. Because from now on, every day counts. और इस घड़ी में, इस 3 महीने में हमारे पास टाइम है that we can improve ourselves और हम क्या क्या कर सकते हैं. So let's see what exactly we have to do in these final 90 days और इन 3 महीने में कैसे हम अपनी डेस्टिनी को चेंज करेंगे, how we are going to fuel our failure and turn out that rank which you require for your dream college and your dream branch. What you need to do. So NEET PG is a predictable game. That's always we have discussed. INI CET इतना predictable नहीं होता. NEET PG एक predictable game है. इसमें हमें पता है कि एक ट्रेंड है जो फॉलो हो रहा है, right? You've got your 2 sets of things, that is your pre and paraclinical subjects, जिसमें हमारे सारे के सारे सब्जेक्ट्स लिस्टेड हैं. These are the pre and paraclinical ones which have got designated number of questions which come every year, right? And at the same time, among those questions, you have got certain clinical subjects which are listed over here. But question याद है कि अब हम क्या करें? इन 19 subjects में कितना टाइम किसको दें? How we should divide that and how much we should read in this particular time? क्या हम सिर्फ recalls देखें या सिर्फ rapid revision देखें या सिर्फ GT दें या सिर्फ MCQ लगाएं या सिर्फ PYQ करें या सिर्फ IBQ करें? What should be the strategy, right? Everybody is confused right now. Now, this is the point of time I would like to give you some kind of, interest towards कि नीट पीजी का ट्रेंड क्या होता है, क्योंकि हर साल नीट पीजी में कुछ ना कुछ ट्रेंड फॉलो हो रहा है और हम लोग उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं. तो आपके पास आपकी लड़ाई 200 क्वेश्चन से है और आपको उन 200 क्वेश्चंस में मैक्सिमम आंसर सही करके वापस आना है, राइट? तो उन 200 क्वेश्चंस में कैसे प्रिडिक्ट करें कि कौन से क्वेश्चन कितने चीजों से बने हुए हैं. Now we have got obviously 800 marks in our hand. And this is the point of time. First of all, we need to realize our attempts as well as the number of attempts of each question should be higher. क्योंकि जितने अटेम्प्ट होंगे हमारा उतना ये ज्यादा रीच बढ़ेगा. If I'm attempting 150 to 160, definitely I don't stand out a chance in getting a good rank because I've already missed out on 40-50 questions. So सबसे पहले मेरा attempt higher होना चाहिए. This is the first strategy that you should have. And NEET PG is not a game of knowing the right answer or wrong answer. It is a game of eliminating the right choices. अब आता है क्वेश्चन कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है. This is what everybody asks. And this is a scheme of things which I have given you right from every year. और ये एक तरीके का मैंने इसलिए रखा है so that I can show you कि कितना important trend follow हुआ है NEET PG. If you see the trend 2020 से लेकर 2025 तक, the range of questions is almost the same. तो इससे मुझे एक चीज समझ में आती है, ये लोग अपने differ out नहीं करते what they are asking. Maybe in 1 or 2 exams they have differed out in maybe 2 or 3 questions up and down, but ज्यादातर ये questions के almost status same रहते हैं from the number of questions asked. So from this I can derive out कि मुझे ये पता चल जाता है what is the highest weighted subjects every year, moderate weighted subjects every year and the least weighted subjects every year. उससे मुझे समझ में आ जाता है how much time should I give in each subject, right?
अब अगर मैं निकालू अमंग द क्लिनिकल सब्जेक्ट्स एवरी ईयर द मैक्स रेटेड सब्जेक्ट्स विच आर आस्क्ड फॉर एवरी टाइम, आप देखोगे ऑलमोस्ट 15 से 20 क्वेश्चन आए, एंड दे आर ऑलवेज मेडिसिन, सर्जरी एज वेल एज ऑब्स-गाइनी, आप इनको छोड़ ही नहीं सकते. दिस इज द थिंग विच यू नीड टू नो वेरी वेल. तो अगले 3 महीने में यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट द मैक्सिमम ऑन दीज 3 क्लिनिकल सब्जेक्ट्स एटलीस्ट, क्योंकि इससे आपका ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन बन रहा है. At the same time, if you come into the third year, you have got one important subject which you need to do, and that is every time us and their favorite, and that is community medicine or PSM. And then go into your pre and paraclinical branches, into your basic sciences. What do you have in there? You have got biochemistry as well as pathology as one of the most asked subject every time. So now you come into biochemistry as well as you go into pathology. They are one of those subjects which they love asking every time. अब यहां पे you can expect out कि ये हमारे सबसे ज्यादा weighted subjects हैं. These are the highest weighted subjects. Now moving on to the moderate weighted subjects. Moderate weighted subjects में अगर हम देखें, we have got anatomy, we have got micro as well as we have got pharma. These are the moderate ones. अब ये यहां पे जितने भी आएंगे ना क्वेश्चन, फार्मा के, पैथ के, मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं, they are integrated with surgery or with medicine. तो हो ये जाता है कि दैट क्वेश्चन फॉल्स इनटू बोथ द कैटेगरीज. अगर आप देखो तो ईएनटी के क्वेश्चंस जो आईएनआई में पूछे गए उसमें तो 2 क्वेश्चन तो मसल्स से रिलेटेड थे, दैट वर ऑल इंटीग्रेटेड विद एनाटॉमी. तो इनके इंडिविजुअल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, दे आर गोइंग टू गेट इंटीग्रेटेड विद सम और द अदर सब्जेक्ट्स एंड दे आर गोइंग टू आस्क यू वेरी स्ट्रेट इन दैट, राइट. नाउ लेट मी कम टू द लोअर वेटेज वंस. अब देखो बाकी के जितने बचे हुए हैं, दे आर ऑल द लोअर वेटेज वंस व्हिच इंक्लूड पीडियाट्रिक्स, एनेस्थीसिया, डर्मा, ईएनटी, ऑफ्थैल, ऑर्थो, राइट, रेडियो डायग्नोसिस. Even physiology, I would say, from basic sciences comes under lower weighted subjects. But what exactly is the meaning of these subjects? क्या ये 5 नंबर के सब्जेक्ट मुझे इतना ध्यान देना जरूरी है? बिकॉज होता क्या है, आप लोग सारे मेजर्स पढ़ते रहते हो और ये 5, 6, 7 वाले क्वेश्चंस आप लोग छोड़ देते हो. बट लेट मी टेल यू, दीज आर द रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट्स. और रैंक डिसाइडर का मतलब होता है कि ये जो 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे ना, ये आपकी रैंक बदलेंगे, क्योंकि ये आपको, ये ज्यादातर लोग छोड़ के जाते हैं और ये सबसे इजी क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं. जो ज्यादातर टफ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ना नीट पीजी में, दैट आर चेंज्ड एवरी ईयर, दे आर फ्रॉम द मेजर वंस, बट फ्रॉम द लोअर वेटेज वंस यूजुअली दे फॉलो द पीवाईक्यूज एंड द पीवाईटीज. तो आपको इनमें कुछ नहीं करना है, आपको बैठ के 10 साल के पीवाईटीज लगाने हैं, और वो पीवाईटीज और पीवाईक्यूज अगर आपने कर लिया, आपके माइंड जो भी आपके छोटे लोअर वेटेज सब्जेक्ट्स हैं वो आपके सारे कवर हो जाएंगे. एंड लेट मी टेल यू, यू कैन हैव एन 80 to 90% स्ट्राइक रेट इन दोस क्वेश्चंस. इट्स सो इजी टू स्कोर. चलो, अब इसके साथ हमें समझ में आ गया कि हमें किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए. बट अभी भी आती है टाइम कि हमारे पास ये है कि पढ़ना कैसे है, राइट. हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए. शुड वी रीड द होल थिंग, शुड वी नॉट रीड द होल थिंग. तो अब मैं बोलूंगा कि अब लास्ट 3 महीने में कुछ भी नया मत पढ़ो. वट एवर यू हैव रेड टिल नाउ, यू हैव टू सॉलिडिफाई एंड यू नीड टू कीप रिवाइजिंग दैट. टाइम टेबल बनाओ, अपने सामने लगाओ, कीप सीइंग दैट टाइम टेबल. इफ यू आर डिवोटिंग हाईएस्ट वेटेड सब्जेक्ट्स को सबसे ज्यादा टाइम देना है, मॉडरेट सब्जेक्ट्स को थोड़ा उससे कम, एंड लोअर वेटेड सब्जेक्ट्स को यू शुडंट गिव मोर देन अ डे और 2. नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू इज कि अगर आप कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहले आपके पास आपके नोट्स हैं, राइट. उन नोट्स में यू शुड हैव ऑल द पीवाईटी, एटलीस्ट द टॉपिक्स दैट हैव बीन गिवन इन द लास्ट 10 years. लास्ट 10 साल के जितने पीवाईटीज हैं आपको करने. लेट्स से अगर मेरा टॉपिक है ईएनटी में, तो ईएनटी में अगर पीवाईक्यू पूछा गया है ओटोस्क्लेरोसिस से शॉर्ट साइन, दैट डजंट मीन वो शॉर्टी साइन पूछेंगे. मे बी दे आर सोडियम फ्लोराइड. अगर सोडियम फ्लोराइड है तो वो, इसका मतलब ये हो गया ओटोस्क्लेरोसिस इज अ पीवाईटी. मतलब आपको पता होना चाहिए अबाउट दैट चैप्टर इन ओटोस्क्लेरोसिस. गो अहेड, सी द वीडियो, पुट इट ओवर इन योर नोट्स, और आपने 10 साल के जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईटी से आपने करके वो नोट बना लिया, आपका आधा सिलेबस हो गया. So you have to concentrate on PYQs and PYTs. 60 to 70% of the paper is from PYTs. Let me tell you very frankly. Now coming to the second one, GT. जितने GT दे सकते हो, दो GTs are predictors. जैसे आपने देखा होगा in Med also we have got a separate thing which is called as a predictor GT. ये हमने इसीलिए रखा है because predictor GT से हमारे आए हैं questions which have been direct in the NEET PG as well as INI exam. Why it is important? Because ये सारे GTs हम लोग तब बनाते हैं seeing the trend. And when we see the trend and we make these GTs, probably कहीं ना कहीं से exact questions भी इनसे निकल के आ जाते हैं. So this will tell you a simulation of the real time examination. आपको एक फीलिंग आएगी कि मैं रेडी हूं कि नहीं. बहुत लोगों के टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज फेल हो जाती हैं. आईएनआई में बहुत लोगों ने कहा कि भाई मैं भूल गया, या फिर एट द सेम टाइम मैं पूरा पेपर कर नहीं पाया. तो अगर मैं कर नहीं पाया तो उस समय आपको कैसे सिमुलेशन मिलेगा? जीटी से मिलेगा. तो सिर्फ रीडिंग नहीं होती. दिस इज समथिंग वेयर यू नीड टू प्रैक्टिस द एग्जाम एज वेल. Last 2 weeks में कोई GTs मत दो, because that is the time where you become overwhelmed. We have got marathons which come in the last 2 weeks, but at this time give max GTs as possible. No, it doesn't matter even if you're not prepared. Just give it.
you'll get to know कि आपके ग्रे जोन्स क्या हैं, राइट, एनालिसिस करने के बाद। इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि फार्मा एक अलग सब्जेक्ट है, मेडिसिन में सारी फार्माकोलॉजी आती है। तो रीड फार्मा एंड मेडिसिन इंटीग्रेटेड, आपको समझ में आ जाएगा जो भी रीसेंट ड्रग्स हैं। डायबिटीज आप पढ़ रहे हो, डायबिटीज के रीसेंट ड्रग्स जो पूछे गए आपने उसी समय देख लिए। तो यू कैन रीड अप 2 सब्जेक्ट्स और 2-3 सब्जेक्ट्स टुगेदर, तो आपसे आपका टाइम भी बचेगा, राइट। एंड एट द सेम टाइम मेंटेन योर 20th नोटबुक। तो 20th नोटबुक में इसलिए कहता हूं क्योंकि ये आपकी नोटबुक है जो असाइड है। जब आप जीटी देते हो, कुछ नई चीजें आती है, आप इस नोटबुक में लिख लेते हो। जो आप बार बार चीजें भूलते हो, आप इस चीज में लिख लेते हो। और ये आपके लास्ट डे एग्जाम रिवीजन में काम आएगी। जो चीजें आप बार बार फॉरगेट करते हैं वो आप लास्ट में खोलेंगे, एंड दिस विल बी द फाइनल रिवीजन नोटबुक विच विल बी एक्सट्रीमली हाई यील्ड फॉर यू, ओनली फॉर यू। ये आपके हिसाब से बनाई गई है। तो मेरी आईएनआई सीटी के रैंक अगर मेरी 10,000 के अंदर थी बट स्टिल मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो उसका ध्यान हम लोग रखते हैं, उसका ख्याल एज मेरिट फैमिली, एज एजुकेटर्स वी ऑलवेज रिवॉर्ड दोज पीपल हु हैव गिवन एवरीथिंग एंड स्टिल एट द लास्ट टाइम दे मिस्ड आउट द आईएनआई रिजल्ट्स। बट if you are under 10,000, definitely we have got a good giveaway for you. We have got for all those people who have secured less than 10,000 rank in INI, we are giving them free subscriptions for the PW Merit app. Yes, you heard me right. It's absolutely free for the next 3 months, taki you can ace your NEET PG journey with us. This is something because we know the value, how much efforts you have put in this particular journey, and we want you to be on top of your game at the best place, whichever you wish for. So, my takeaway for today is कि INI CT के रिजल्ट भूल जाओ। योर स्टोरी इज नॉट एंडिंग हियर, इट इज स्टार्टिंग। रीसेट योरसेल्फ, रिवाइज नाउ, एज वेल एज गेट सेट फॉर द बिगर गेम इन लाइफ, क्योंकि सबसे बड़ा गेम अभी बाकी है। वॉट यू डिड वॉज गेव यू अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, अब असली गेम आया है। डोंट बॉदर अबाउट वॉट यू हैव गॉट, दिस इज समथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज नॉट लाइफ। एग्जाम्स आर मेंट टू जस्ट शो यू कि वेयर यू लाई, इट इज नॉट समथिंग कि आपका ये लाइफ डिसाइडिंग प्रोसेस है। पर हमारे हिसाब से हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। वी नीड टू गिव आवर बेस्ट एफर्ट्स इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट रैंक। दैट्स व्हाट आवर मोटिवेशन शुड बी, दैट्स व्हाट आवर एम शुड बी। और डॉक्टर्स की जर्नी अगर इतनी आसान होती तो क्या सब डॉक्टर्स बनते? इन सिंपल वर्ड्स, आप डॉक्टर सिर्फ इसलिए हैं बिकॉज यू आर टफ गाइज, यू आर योर पीपल हु हैव गॉन बियॉन्ड योर फियर इन अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू आर फाइटिंग एवरी डे, एंड दैट्स व्हाट दीज एग्जाम्स आर मेंट फॉर। तो डोंट फॉरगेट योर PYQs एंड PYTs। जैसा मैंने आपको बताया, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आर समथिंग व्हिच कम एवरी ईयर। अपनी इमेज की एक नोटबुक, इतने सारे PDFs हैं, वी कीप गिविंग। इमेज की एक अपनी PDF बना लो, कीप सीइंग दोज इमेजेस अगेन एंड अगेन, कीप सीइंग ऑल व्हाट दे हैव आस्क्ड। ये इमेजेस कोई नई इमेजेस नहीं है, ये वही गूगल की इमेजेस हैं जो रोटेट हो रही हैं, राइट। Recents are very important for NEET PG. Recent advances जो नए नए आए हैं, नए ड्रग्स आए हैं, नई मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स आई हैं, नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज जो आई हैं, ये सारी के सारे क्वेश्चंस स्ट्रेट अवे आते हैं। एंड एट द सेम टाइम क्लिनिकल पॉइंट्स को इंटीग्रेट करो। डोंट रीड सब्जेक्ट्स एज इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, इंटीग्रेट देम बिटवीन मल्टीपल थिंग्स एंड गेट द मैक्स यील्ड आउट, right? So this is something from our side, and yes, congratulations to all who have secured a great rank in INI CT, but yet the game is not over. We definitely have to get you through, and we are going to see you on the other side very soon. So all the very best for NEET PG preparation. Keep doing well and keep shining.